Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In today's video, I'm going to explain a very important question from class 9 math, exercise 3.2, question number 12. This is a word problem based on three sets: cricket, football, and hockey. And we solve it by using Venn diagram step by step. Make sure to watch till end because we will not only solve it but also understand the concept of intersection and union of three overlapping set by using the principle of inclusive and exclusive. This is a very simple word problem. How? Just find out the given things provided in the question statement. Put in the three overlapping sets formula of inclusive, principle of inclusive and exclusive, and find your required answer. First, in a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football, and hockey. At least means the union between the cricket, football and hockey is equal to total number of students is 125. इसमें हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्रिकेट के स्टूडेंट को सी से, फुटबॉल के स्टूडेंट को एफ से डिनोट कर देंगे और हॉकी के स्टूडेंट्स को एच से डिनोट कर देंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 125 है. तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वो प्ले क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी इज इक्वल टू 125. फर्स्ट लाइन से हमने नाउ 60 students play cricket means the number of students who play cricket is equal to 60. Right, number of students who play cricket denoted by C is equal to 60. 70 students play football means number of students who play football is 70. So it mentioned in number from the playing student of football F is equal to 70. 40 students play hockey. Number of students who play hockey. Number of students who play hockey is equal to 40 students. Then go back to the statement again. 25 students play both cricket and football. Cricket C and means the intersection sign, football F. तो हमारे पास हो जाएगा number of students who C intersection F is equal to 25. हम लोग and के साइन को स्टेटमेंट में इंटरसेक्शन से और के साइन को यूनियन से डिनोट करते हैं. 25 students who play both cricket and football. And means intersection sign, so number of students who play cricket and football is 25. Number of students play cricket intersection football is equal to 25. Now 15 students play both football and hockey. Football F and means intersection sign, hockey means H, means number of student F intersection H is equal to 15. So denoted by 15. F football and hockey is equal to 15. Now go back to the statement again. 10 students play both cricket and hockey. Cricket C and intersection sign and hockey means number of students who play cricket and hockey is 10. Now write in that numerical form, and cricket and hockey is equal to 10. How many students play all three sports? हमने बताना कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों कॉमनली गेम्स खेलते हैं. तो तीनों के कॉमनली नंबर्स क्या होगा? नंबर ऑफ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी मीन्स इंटरसेक्शन बिटवीन दीज. और कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, हमने इसको कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी स्टूडेंट्स. कैलकुलेट क्या करना है हमने? नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी एंड सपोज इट एक्स. We just simply use the principle of exclusive and inclusive of three overlapping set provided at page number 49 on your book. Let us see. This is the formula principle of inclusive and exclusive for three sets. Just use this formula. Put the values provided in the question statement. You will get the required answer of intersection. This is the formula of principle of exclusive and inclusive. If बाई मिस्टेकन यू डोंट रिमेंबर द फार्मूला इन द एग्जाम, तब हम क्या करेंगे? जैसा गिव यू द सिंपल ट्रिक. अगर आपको एग्जाम में फार्मूला याद नहीं रहता तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? फार्मूला हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट में अरेंजमेंट ऑर्डर में खुद ब खुद प्रोवाइडेड है. अगर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास यूनियन है, मीन्स द नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन तीनों सेट का यूनियन बराबर होगा नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ हॉकी. देन सब्ट्रैक्ट कर लें इंटरसेक्शन की सारी वैल्यूज़ को, इनमें से माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट and football minus number of football and hockey minus number of cricket and hockey, then plus sign number of cricket football and hockey. हर चीज़ हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड है. इवन दो फार्मूला कंप्लीट
जस्ट फाइंड आउट करने के बाद आपने फार्मूले को इस फॉर्मेशन में मेंशन कर देना है, देन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। यूनियन की वैल्यू में क्या प्रोवाइडेड है 125, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो प्ले क्रिकेट हमने फाइंड आउट की 60, फुटबॉल 70, हॉकी 40, नाउ माइनस साइन, cricket and football students they are provided 25, minus football and hockey students they are provided 15, minus the student they provided as the student of cricket and hockey which is equal to 10, plus now we have to find out C intersection football intersection hockey students, name it as x, उसको हमने x का नाम दिया था, plus x. Use your calculator and find the value of x from this equation. 125 इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, 60 + 70 + 40 -25 -15 -10 we get 120 plus x, कॉन्स्टेंट है 120, साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, -120 = x, 125 - 20 we get 5, अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे x = 5, मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who play all 3 sports is equal to 5. नाउ वी कंस्ट्रक्ट द वेन डायग्राम। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। कैसे कि अपनी कंपास के को आप एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर रेडियस के मुताबिक ओपन कर लो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो। पहला सर्कल आप ड्रॉ करोगे फॉर क्रिकेट स्टूडेंट्स, ये मैंने पहला सर्कल ड्रॉ कर लिया फॉर द क्रिकेट स्टूडेंट्स। नाउ आई ड्रा द सर्कल फॉर द फुटबॉल स्टूडेंट्स। सेकंड सर्कल जो मैं ड्रॉ करूँगी वो फुटबॉल स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉ कर दूँगी, और ओवरलैपिंग का मीन्स कि वो पहले सर्कल में से गुजरता हुआ निकलेगा, क्योंकि कुछ कॉमन भी तो होंगे ना क्रिकेट और फुटबॉल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। तीसरा सर्कल हम डिनोट करेंगे ओवरलैपिंग सेट में। थर्ड सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड सर्कल हमने ऐसे इसके नीचे कंस्ट्रक्ट करना है कि वो दोनों सर्कल में से पास गुजरता हो, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है, तीसरा दोनों में से गुजरा। तो ये तीसरा सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया जो दोनों सर्कल्स में से हमारा इस तरह पास कर रहा है। ये हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए। नाउ वी ड्रॉ दीज 3 सर्कल्स। पहले दिस फॉर द क्रिकेट, ये फुटबॉल के लिए और ये हॉकी के लिए हमारा। सबसे पहले जो अभी हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस पार्ट में, जिसमें हमारे पास इंटरसेक्शन आ रही थी, जिसमें तीनों सर्कल कंसाइड करें, एक दूसरे को टच करें, उस पोर्शन में मेंशन कर देंगे। हमने अभी कैलकुलेट किया था C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, मीन्स तीनों का कॉमन फैक्टर 5 है। 5 यहाँ पे माइनस कर दें। ये इतना पोर्शन आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन हमारे पास तीनों का कॉमन पोर्शन है, जहाँ पे तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये 5 पोर्शन वहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ इस पोर्शन को पहले देखते हैं कि ये पोर्शन क्या है। ये पोर्शन जिसमें दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये C इंटरसेक्शन F है। टोटल हमारे पास C इंटरसेक्शन F की वैल्यूज़ क्या थी? C इंटरसेक्शन F की वैल्यू हमारे पास टोटल 25 है। टोटल C इंटरसेक्शन F इज़ 25, मीन्स ये पूरा पोर्शन जो है हमारा वो 25 का है। इसमें से इतना पोर्शन 5 का पोर्शन हमारा निकल गया, तो 25 - 5 मीन दिस पोर्शन इज़ 20। C इंटरसेक्शन का टोटल पोर्शन ये था, ठीक है। उसमें से 5 हमने पहले मेंशन कर दिया था, तो तीनों के कॉमन फैक्टर थे, तो टोटल हमारे पास 25 - 5 20 हमारे पास C इंटरसेक्शन F पोर्शन आ गया। नाउ वी सी दिस पोर्शन, ये जो सर्कल है ये C F इंटरसेक्शन H है, ये पोर्शन और दिस पोर्शन, दिस इज F इंटरसेक्शन H। अब देखते हैं कि फर्स्ट F इंटरसेक्शन H की वैल्यू में क्या प्रोवाइडेड है। F इंटरसेक्शन H की वैल्यू में प्रोवाइडेड है 15, मीन्स ये टोटल पोर्शन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन ये 15 है। पूरा पोर्शन 15 है। 15 में से 5 ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, तो 15 में से 5 को मेंशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 हो, वी गेट 10। 10 + 5 15, पूरा पोर्शन हमने मेंशन कर दिया। नाउ वी सी दिस पोर्शन, ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ C एंड H। क्रिकेट और H स्टूडेंट का C इंटरसेक्शन H के पोर्शन को देखते हैं। C इंटरसेक्शन H की वैल्यू हमें क्या गिवन है? C इंटरसेक्शन H की वैल्यू हमें 10 प्रोवाइडेड है, मीन्स ये पूरा पोर्शन 10 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, 5 ऑलरेडी मेंशन है, तो 10 - 5 वी लेफ्ट 5। उसको चेक कर लेंगे। अगर C इंटरसेक्शन F के पोर्शन को देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, तो 20 + 25। आप इस पोर्शन को चेक कर लें। F इंटरसेक्शन H का पोर्शन टोटल हमारे पास 15 है, तो 10 + 5 15। देन C इंटरसेक्शन H का टोटल पोर्शन हमारे पास ये है, विच इज़ इक्वल टू 10, तो 5 + 5 10, मीन्स जो हमने कैलकुलेशन की वो बिल्कुल एक्यूरेट थी।
नाउ अब हमने सी के बाकी एलिमेंट्स को मेंशन करना है. नंबर ऑफ सी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सी स्टूडेंट टोटल हमारे पास 60 प्रोवाइडेड है क्वेश्चन स्टेटमेंट पे. 60 प्रोवाइडेड है. इस सर्कल में ऑलरेडी हम कितने मेंशन कर चुके हैं? 20 प्लस 10, ये 5 प्लस 5, पूरे सी के सर्कल में 20 प्लस 10 30 हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं. टोटल नंबर ऑफ 60 है, तो 60 में से 30 माइनस कर देंगे, वी गेट 30 देयर. नौ नंबर ऑफ एफ स्टूडेंट के सर्कल को मेंशन करते हैं. नंबर ऑफ एफ स्टूडेंट मीन फुटबॉल स्टूडेंट 70 थे. 70 में से ऑलरेडी देखिए सर्कल में हम कितने मेंशन कर चुके हैं? 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35. सर्कल में हम एफ के सर्कल में ऑलरेडी 35 स्टूडेंट्स को मेंशन कर चुके हैं. तो 70 माइनस 35 लेफ्ट 35 स्टूडेंट्स. ना एज की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल सर्कल में आपने मेंशन करने हैं. नंबर ऑफ एज स्टूडेंट टोटल हमारे पास 40 प्रोवाइडेड है क्वेश्चन स्टेटमेंट में. 40 हम ऑलरेडी कितने मेंशन कर चुके हैं? चेक करते हैं. 10 5 और 5 20 ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं पूरे एज के सर्कल में. तो 40 माइनस 20 वी लेफ्ट 20. दिस इज आवर वेन डायग्राम सिंपली. It is a very simple question. Just you need to do that. Just find out the given things provided in the question statement. Then use the principle of inclusive and exclusive. Put the values provided in the question statement. Find the required answer. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.